sitting here these days, I was thinking of the last time I in Bangalore, when just before we left. It was about a couple of months back, first week of March. इन दिनों यहाँ बैठे हुए मैं सोच रही थी लास्ट टाइम जब हम बैंगलोर में थे वहाँ निकलने से पहले वो कुछ महीनों पहले मार्च का पहला हफ्ता था. I can never forget when we met together as I walked into the church. और मैं नहीं भूल सकती जब हम एक साथ मिले थे और जब मैं चर्च में हम लोग अंदर गए. I didn't realize that it be the last time we would meet together as a group. We'd have to meet individually even in Bangalore. तब मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट टाइम होगा जब हम एक ग्रुप के रूप में या व्यक्तिगत रूप से बैंगलोर में साथ में मिल रहे होंगे. So I walked into the meeting hall and it was so refreshing to hear the hymns, the singing. और मैं मीटिंग हॉल में गई और भजन को सुनना, आराधना सुनना वो बहुत ही ताज़ा करने वाला था. And the prayer, worship together, praising the Lord together, and और प्रार्थना करना, आराधना, प्रभु को एक साथ स्तुति करना. the message. And after that we had breaking of bread. It was such a fresh meeting that day. साथ में संदेश सुनना, रोटी तोड़ना, वो उस दिन बहुत ही ताज़ा करने वाली सभा थी. When we met around the Lord's table and we examined ourselves and we took part in the Lord's table. और हम प्रभु मेज में शामिल हुए और हमने एक अपने आप को जांचा और हम एक साथ प्रभु मेज में शामिल हुए. वो सच में बहुत ही ताज़ा करने वाला था. And I didn't realize that after that, no more meetings anywhere in the world. मैंने नहीं सोचा था कि उसके बाद विश्व में कभी भी और कोई मीटिंग इस तरीके से नहीं होगी. And here we are meeting by ourselves, but thank God we can still meet. We can meet together. पर प्रभु का धन्यवाद कि हम मिल पा रहे हैं, कम से कम इस तरीके से हम मिल पा रहे हैं. In this way, by ourselves, but God allowed it. We have to thank God for the mercies He has given us. That हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, कम से कम इस तरीके से मिल पा रहे हैं. प्रभु ने इसकी अनुमति दी है. we can at least meet in this way. प्रभु की दया के लिए धन्यवाद कि कम से कम हम इस तरीके से अब मिल पाते हैं. You know, when we lose something or we have a lack of something, we begin to appreciate it. जब हम कुछ खो देते हैं या किसी चीज की कमी होती है तब हम उस चीज की सराहना कर पाते हैं. Like in Bangalore, I remember the days when we used to have water scarcity. मुझे याद है बैंगलोर में जब हमें पानी की बहुत कमी हुआ करती थी. Usually in summer, we don't have enough water. They turn off the water certain days and खासकर गर्मियों के दिनों में जब बहुत कम पानी होता था या पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी give only a limited amount of water. और हमें बहुत सीमित मात्रा में पानी दिया जाता था. So then we begin to realize how valuable water is and we are so careful with water. We don't waste it. And तब हमें एहसास हुआ कि हमें पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है और हम बहुत ही ध्यान से उसका इस्तेमाल करते थे. we try to use as little as possible and we can reuse something. और हम कोशिश करते थे कि हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें और उसका दोबारा भी हम इस्तेमाल कर सकें. We collect water and use that for the plants. हम पानी को इकट्ठा करते थे और पौधों और दूसरी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे. Or things like that. It's like that when we don't have something or we have scarcity of something. और ऐसा ही होता है जब हमारे पास कुछ नहीं है या किसी चीज की कमी है. Then we appreciate the value of that. और तब हम उस चीज की सराहना करने लग जाते हैं. It's like that here. We are not able to meet together for fellowship. We are not able to see each other. और अब हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं. And we have to stay in our homes and things are so different. और हमें अपने घरों में रहना पड़ रहा है और चीजें बहुत ही अलग हैं. Then we value how it was when we could meet together. और तब हम इस बात को जान पाते कि उस समय कैसा था जब हम एक दूसरे से मिल सकते थे. Maybe sometimes we didn't feel like coming for the meeting because there was some small headache. और कभी-कभी ऐसा लगता था मीटिंग आने का मन नहीं करता था क्योंकि थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था. Or something wasn't right or we were not getting ready in time. या कुछ चीजें ठीक नहीं थी या समय पर हम तैयार नहीं हो पाए. And we think, okay, maybe I'll stay at home today. Or the children are a little bit sick. और फिर हम सोचते थे कि ठीक है मैं तो घर पर ही रहूंगी या बच्चे अगर थोड़े से भी बीमार अगर होते थे. And but here we think now, Lord, I'll do anything if I can meet one sister and pray with her. और अब मैं सोचती हूँ कि प्रभु मैं कुछ भी करूंगी अगर मैं सिर्फ एक बहन से भी मिल पाऊं और उसके साथ प्रार्थना कर पाऊं.
that's how it is. The Lord leads us in to situations, helps us to come to situations where we don't have enough of something which we long for. Then we begin to appreciate. ऐसा ही होता है, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर आता है जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी होती है और फिर हम उस चीज़ का मूल्य करने लगते हैं। That's one of the good things that happen, that can happen during these days. और ये एक अच्छी चीज़ हुई है। You know, sometimes I think of a story which I heard long ago. और मैं उस कहानी के बारे में सोचती हूँ जो मैंने बहुत समय पहले सुनी थी। In a message. You may have heard it. I think some of my children may have used it in their messages. आपने शायद सुना होगा, मेरे बच्चों ने भी अपने संदेश में इस कहानी का इस्तेमाल किया होगा। It's about a little boy. It's not a true story, but a little boy was walking down a beach. ये एक छोटे लड़के के बारे में है, ये शायद सच्ची कहानी नहीं है। वो छोटा लड़का शाम को बीच पर टहल रहा था। One evening, it was getting little dark, and he was walking down, and he was bored with life. अंधेरा हो रहा था और वो किनारे पर चल रहा था और वो जीवन से ऊब गया था। Maybe a teenager, and he didn't want, things were not going his way. And that time when the boys are growing up, boys and girls are growing up in adolescent time, it was one of those moods. और वो किशोर था और चीजें उसके जीवन में शायद सही नहीं चल रही थी और वो ऐसा समय था जब लड़के लड़कियां बढ़ रहे होते हैं और अपनी किशोर अवस्था में होते हैं। And he found a bag of stones. और उसे पत्थरों का एक थैला मिला। Somebody had dropped or maybe collected some pebbles and kept it there. किसी ने शायद उसे वहां छोड़ दिया था, शायद किसी ने कंकड़ों को उसमें भर के वहीं पे रख दिया होगा। So he picked up that bag. It was getting late in the evening. तो उसने उस बैग को उठा लिया क्योंकि अंधेरा हो रहा था, शाम हो रही थी। So he picked up that bag and he started walking towards his home. और उसने उस बैग को उठा लिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। Then aimlessly he started picking those pebbles out of that bag. और वह उनमें से कंकड़ों को निकाल कर फेंकना उसने स्टार्ट कर दिया। And threw them one by one into the water. और एक एक करके वह उसे पानी में फेंकने लगा। He watched the pebble drop into the water and saw the ripples or the splash. और वह उसे उस पानी में फेंकता और उन तरंगों को आते हुए देख रहा था। And he did aimlessly, just threw them one by one, and then he started his way home. और यूं ही लक्ष्यहीन वो एक एक करके उनको फेंकता रहा और अपने घर की तरफ वो जा रहा था। He reached home, and then he tossed the bag down. और वो घर पहुंच गया और उसने थैले को खाली कर दिया। Then after some time he picked up that bag because there were just 1 or 2 pebbles left. और उसके बाद उसने उस बैग को उठाया और उसमें देखा कि उसमें एक या दो ही कंकड़ बचे थे। And he looked inside the bag, and it was not stones in that bag. और उसने उस बैग के अंदर देखा और उस बैग में वो पत्थर नहीं थे। They were precious stones. Somebody had dropped a bag of maybe diamonds or rubies or something. और वो कीमती पत्थर, वो कीमती हीरे या मोतियों का पत्थर था जो शायद किसी ने उस समुद्र किनारे गिरा दिया होगा। It had dropped on the beach, and he had found it. किसी ने उसे गिरा दिया होगा और इस छोटे लड़के को वो मिल गया था। Thinking it was stones, and he was throwing them into the water. और वो सोच रहा था कि ये पत्थर है, वो उसे पानी में फेंक रहा था। Can you imagine how he must have felt आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उसे कैसा लगा होगा when he realized that he had thrown away all these precious stones उसको ये महसूस हुआ कि उसने वो सारी कीमती पत्थरों को पानी में फेंक दिया था। which he had found, and that could have made him so rich. इन कीमती पत्थरों ने उसको कितना अमीर बना दिया होता। He need not have worked for the rest of his life. उसको अपनी बाकी जिंदगी भर के लिए शायद काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। If he had kept those stones, and he and his family could have lived in comfort. अगर उसने उन पत्थरों को, कीमती पत्थरों को संभाल कर रखा होता तो वो और उसका परिवार आराम से आगे की जिंदगी को बिता सकता था। If he had saved those precious stones. Now that's not a true story, I don't think. मैं नहीं सोचती कि ये एक सच्ची कहानी है, But it reminds me of these days लेकिन ये मुझे इन दिनों की याद दिलाता है। when we are at home. Maybe we have a bag. We are like that situation where we just have a bag of something. और हम लोग अपने घर पर हैं और हम सबके पास वो एक बैग है। God has brought us to made the situation happen to in our homes. और परमेश्वर ने हमारे घरों में इस तरह की परिस्थितियों को बना दिया है।
and in this country and all over the world, इस देश में और सारी दुनिया भर में, where we just have to stay at home. And it's like finding this bag, और हमें अपने घर में रहना है और ये इस तरीके से है जैसे हमें वो बैग मिल गया हो and we don't know what to do with it. और हमें नहीं पता कि इस बैग के साथ क्या करना है We don't realize that there are precious stones in it. और हमें शायद इसका एहसास नहीं होता कि इस बैग के अंदर वो कीमती पत्थर है। These situations that we are facing, this locked in and or locked out situation that we are in, और ये जो परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन जो हो गया है, it's precious stones inside. और ये सारी चीजें जो हैं ये एक कीमती पत्थर है उसके अंदर। And if we collect them and make use of it, we'll find that someday that will be a blessing to us. अगर हम इन्हें इकट्ठा करते हैं और हम इसका उपयोग करते हैं तो हम पाएंगे कि ये किसी के लिए आशीष होगी। Maybe years later we'll think, yeah, that time when we had that lockout in 2020, और फिर कुछ सालों बाद तब हमें याद आएगा कि हाँ 2020 में जब वो लॉकडाउन था, when we were indoors, the Lord gave me this word. जब मैं घर के अंदर थी तब प्रभु ने मुझे ये शब्द दिया, ये वचन दिया। Or we were going through this situation, we didn't have enough food, और हम उन कठिन परिस्थितियों से जा रहे थे और हमारे पास प्राप्त भोजन नहीं था and God took care of us. Or some sickness came and our children were sick, परमेश्वर ने हमारा ध्यान रखा, हम कुछ बीमारी थी, हमारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। and we thought, is it coronavirus or is it something else? तब हम सोचते थे कि क्या ये कोरोना वायरस है या ये कुछ और है। And the Lord gave me this word and assured me. So, value all those precious stones which the Lord is giving us through His word during this time. Collect it and keep it, and it will come, not only become a blessing to us, but maybe a blessing to so many people. तब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और विश्वास दिलाया, इन कीमती पत्थरों का मूल्य करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, इन्हें इकट्ठा करें और फिर ये ना केवल आपके लिए पर कईयों के लिए आशीष होंगे, Definitely to our children. और निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए। Already I can see what a blessing it has been in our home. और हम देख सकते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी आशीष होने लगी है। I can see how children most of us who have children will see. और मैं इसको देख पाती हूँ जो हमारे बच्चे हैं, और हम में से बहुत से इस बात को देख पाएंगे जिनके बच्चे हैं, The children who were so much unrest that, oh, I want to go here, जो बच्चे इतने अशांत रहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, कि मुझे वहाँ जाना है, I want to go to this vacation, I want to eat in this restaurant, मुझे छुट्टी के लिए यहाँ जाना है, मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, मुझे वहाँ पे खाना खाना है। I want this, I want that. They're so happy to be at home and just listen to us, eat whatever food we are giving them. अब वो घर पर रहकर बहुत खुश हैं और जो हम उन्हें खाने के लिए देते हैं वो खा रहे हैं, Because they can sense things are different now. क्योंकि वो देख सकते हैं कि चीजें अब बहुत अलग हो गई हैं। Already God has done a change in their lives. परमेश्वर ने पहले ही उनके जीवन में एक बदलाव कर दिया है, If not, God will still do a. और अगर नहीं तो परमेश्वर जरूर उनके जीवन में वो बदलाव करेगा। So this time of isolation, really God has a plan for it, इसलिए इस अलगाव के समय में परमेश्वर की एक योजना है and He will fulfill that plan. और वो उस योजना को जरूर पूरा करेगा। Only thing, we should not be in unrest, and our children can sense. और हमें अशांति में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे बच्चे उस बात को समझ सकते हैं। Are we in unrest? Are we worried? वो देख सकते हैं कि हम कितने अशांत हैं, क्या हम चिंता कर रहे हैं, Are we upset? Things are not going our way. The children can sense, and they will learn that from us, बच्चे इस बात को समझ सकते हैं और वो सारी ये बातें हमसे सीखेंगे। or they get that spiritual disease, not the corona disease, but the spiritual disease. और हम उन्हें वो आत्मिक बीमारी देंगे, कोरोना डिजीज नहीं, पर शायद हम उन्हें वो आत्मिक बीमारी उन तक दे देंगे। We can transmit it to them, but we want to give them a time. These days we can see, yeah, dad and mom. पर हम उन्हें वो समय देना चाहते हैं जब वो याद कर सके। I remember those days when we had this coronavirus problem, जब वो याद कर सके कि हाँ जब कोरोना वायरस था, and how you took it. And years later, और वो याद करेंगे कि मम्मी पापा ने उस समय को किस तरीके से लिया। they can say, yeah, this is how my dad and mom faced a situation, a crisis. और वो याद करेंगे कि मेरे मम्मी पापा ने उस संकट के समय का किस प्रकार से सामना किया।
and they were not afraid. They were not worried. और वो याद करेंगे कि वो मम्मी पापा चिंतित नहीं थे, डरे नहीं थे, घबराए नहीं थे They were not in panic. They were not grumbling or murmuring. और वो कुड़कुड़ा नहीं रहे थे And they can look back to that and they can run their lives और वो पीछे देखेंगे और वो भी अपनी दौड़ को फिर दौड़ पाएंगे। in victory. So that's like one of the precious stones in that bag और इस तरीके से ये एक वो कीमती पत्थर है जो उस बैग में रखा हुआ है which we can keep and save for our children. जिसे हम अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा सकते हैं। You know, at this time we can think of people in the Bible who had to face times of isolation. और इस समय में हम बाइबल के उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें इस तरह का समय का सामना करना पड़ा। It's a good time for us to meditate on those people like that. और ये एक बहुत अच्छा समय है कि हम उन पर विचार करें। I can think of Joseph. He was a young teenager मैं यूसुफ के बारे में सोचती हूँ जो बहुत ही एक युवा व्यक्ति था and he was taken away from his home, almost like kidnapped. और उसे उसके घर से ले जाया गया था और उसको शायद उसका अपहरण कर लिया गया था, Taken away and sold as a slave, और उसे गुलाम की तरह बेच दिया गया था and he had to work. And after that he was put in prison. और उसको काम करना पड़ता था और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया था In prison and he had to be away from his parents and his loved ones. और उस बंदी गृह में उसे अपने माता पिता से दूर, अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ता था And his friends, nobody was there to comfort him. और उसका कोई दोस्त नहीं था, उसको दिलासा देने के लिए कोई नहीं था। We can imagine what a young boy would face. आप सोच सकते हैं कि उस जवान लड़के को किन किन बातों का सामना करना पड़ा होगा। Or we can think of John, an old man in Patmos. और हम पतमुस में उस वृद्ध व्यक्ति यूहन्ना के बारे में सोच सकते हैं। He was sent there as an exile. और वहां पर उसे अकेला भेज दिया गया था पतमुस टापू पर। So we can think of young people facing isolation, an old man like John the Apostle. जवान व्यक्ति और बूढ़े व्यक्ति सब लोग उस अलगाव का सामना कर रहे थे। Being put in prison, put on the Isle of Patmos, and he was all alone. और उसे पतमुस टापू पर छोड़ दिया गया था, वहां पर वो बिल्कुल अकेला था। And it was the Lord's day. He must be thinking, this is the day when people all over the world are praying. और वो सोच रहा होगा कि ये समय है जब दुनिया भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं And worshipping, and they are meeting together, and here I am. और वो सोच रहा होगा कि वो सब लोग मिल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ अकेला, An exile in this lonely place. इस तरीके से मैं अकेला हूँ। And then the Lord came and revealed himself. He heard God's voice. और प्रभु आए और प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और उसने प्रभु की आवाज को सुना Like a trumpet. It was so clear. और एक तुरही की तरह वो इतनी स्पष्ट थी And he was so struck by the Lord's presence that he fell down like a dead man. और वो प्रभु की उपस्थिति से भर गया और वो एक मृत व्यक्ति के समान गिर पड़ा। God met with him there. Or people like Elijah, active servant of God. और एलिया की तरह जो प्रभु का बहुत ही सक्रिय सेवक था, he did such a mighty work. और उसने बहुत ही सामर्थी कार्य किए And proved himself to be a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता था। And the prophets of Baal were subdued. And then at the threat of a woman, उसने सारे बाल के जो नबी थे उन सबको हरा दिया, पर फिर एक महिला की धमकी से of the queen, he started running away. और वो उसकी धमकियों से भागने लगा। ran, and he was so tired. He reached a place alone. और वो दौड़ते दौड़ते इतना थक गया कि वो एक जगह पर अकेला पहुंच गया। And there was a whirlwind. There was a storm, mighty, and then a still small voice. और फिर एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और उसने एक बहुत ही धीमी आवाज को सुना। God spoke to him and said, "Don't worry, Elijah, I am with you." और प्रभु ने उससे बात करी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। I have sent my angel to prepare food for you. Eat and get nourished because you have a long way ahead of you. और तू इस खाने को खा और पोषित हो जा क्योंकि तुझे एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। So there were so many times in the Bible
instances in the Bible where people had to face isolation. इसलिए बाइबल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर लोगों को वो अलगाव या अकेलेपन का सामना करना पड़ा। And then of late, we've been thinking of the days of Noah. I think if you've been listening to the messages, you would have heard of Noah. और फिर हम नूह के दिनों के को याद करते हैं और आपने संदेशों में नोहा के बारे में भी सुना होगा। And that started me thinking, how was it in the time of Noah? और मैं सोचने लगी कि नोह के दिनों में कैसा होगा। I mean, until the rain came, the whole family was so busy building the ark. जब तक बारिश नहीं आई थी पूरा परिवार उस जहाज को बनाने में व्यस्त था। And collecting food, and they could meet their neighbors, they could meet their relatives, they could go shopping or whatever. और वो भोजन को इकट्ठा कर रहे थे, वो अपने पड़ोसियों से मिल सकते थे और वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकते थे, वो खरीदारी करने जा सकते थे। So much of activity. And then just before the flood came, they entered the ark and God shut the door. और वो बहुत सारी गतिविधियों को कर सकते थे और जब बाढ़ आई तो उसके आने से पहले परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। It's almost like in our days, God has shut the door for us and we have to stay inside. और ये इसी तरीके से है जैसे आज परमेश्वर ने हमारे दरवाजों को बंद कर दिया है और हमें अपने घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। If we want, we can go out, but in Noah's case, they couldn't go out. God has shut the door permanently for some time at least. अगर हम चाहें तो हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन नूह के समय में वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया था। And can you imagine Noah's wife, how she must be feeling? आप सोच सकते हैं कि नूह की जो पत्नी होगी वो कैसा महसूस कर रही होगी। I used to think of her. She's a mother-in-law and a mother and a wife. मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि वो एक सास थी और वो एक माँ भी थी और वो एक पत्नी थी। Sitting there now in a confined space, wondering whether the food will last. We don't know whether it will rain for. और अब उसे एक बहुत ही सीमित जगह में बैठना पड़ता था। वो सोचती होगी कि ये खाना कितने दिन तक चलेगा, ये बारिश कब तक होगी। She didn't know how long it's going to rain. And after the rain stopped also, she had to stay for almost a year. They had to stay in the ark. उसे नहीं पता था कि बारिश कितने दिनों तक और होने वाली है। इवन बारिश के रुकने के बाद भी उन्हें कम से कम 1 साल उस जहाज के अंदर ही रहना पड़ा। Can you imagine her plight? How she must be tempted to complain, tempted to find fault with her daughters-in-law. उसकी कल्पना, उस दुर्दशा की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती जो उसकी हुई होगी उस समय में। और उसकी परीक्षा होती होगी शिकायत करने की या अपनी बहुओं में वो गलतियां ढूंढने की। And people, others grumbling and complaining. दूसरे लोग शायद शिकायत करते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे। And no fresh food. They must have stored food for months, maybe all the dry food, and she wondered whether the food would last enough. कोई ताज़ा खाना नहीं होता होगा, उस खाने को उन्होंने संग्रह करके रखा होगा और सारा सब सूखा खाना होता था और वो सोचती होगी कि क्या ये खाना कितने दिन और चलेगा। And all the smell of the animals. और सारे जानवरों की गंदी बदबू आया करती होगी। You know, can you imagine how? And maybe just one toilet or something for everybody to use. No privacy. Wherever she went, she'd bump into somebody or other. और आप सोच सकते हैं कि कैसा होता होगा, सिर्फ शायद एक ही शौचालय होता होगा और वहां पर कोई भी व्यक्तिगत समय या किसी तरह की प्राइवेसी नहीं मिलती थी। अगर वो कहीं जाती होगी तो शायद किसी चीजों से या लोगों से टकरा जाती होगी। And things were, when her children were not doing the things she wanted them to do or not her way. Can you imagine how much pressure she must have faced in the ark? और शायद उसके बच्चे चीजों को उस तरीके से नहीं करते होंगे जैसा कि वो चाहती है वो करें। आप सोच सकते हैं कि वो कितना दबाव झेल रही होगी उस समय में। And that kept me thinking how it must have been. But then now I don't want to imagine Noah's wives have to come to our situation. तब मैं सोच रही थी कि उसके साथ ये सब कैसा रहा होगा, वो समय कैसा रहा होगा उसके साथ। मैं उसकी कल्पना नहीं करना चाहती, पर मैं हमारी कल्पना, हमारी परिस्थिति के बारे में आज सोचना चाहती हूँ। In our situation, what does the Lord want to tell me? What am I facing in these days? Of course, we have a lot more comfort. We can get groceries. We can get things delivered to us. आज हमारी परिस्थिति में परमेश्वर क्या चाहता है? जरूर आज के समय में उस समय की तुलना में हमारे पास बहुत आराम है।
हमें जो सामान चाहिए राशन का वो हम पा सकते हैं और चीजों की डिलीवरी आज हमारे पास हो जाती है। There's a lot more comfort. But what is the Lord trying to speak to us at this time? शायद आज बहुत आराम है, बट प्रभु इस समय में हमसे क्या बात कहना चाहता है? We may have questions. How long is this virus going to last? Will it affect our children? हमारे मनों में शायद ये सवाल आता होगा कि ये वायरस कितना और दिनों तक चलने वाला है, क्या ये मेरे बच्चों को प्रभावित करेगा? Or suppose we have a little headache or a little breathing difficulty or cold. I think, oh, is this a coronavirus? Should I keep away? What should I take some medicine? What should I do? All kind of fears. अगर हमें थोड़ा सा सिर दर्द होता है या थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है या ठंड लगती है तो हमें लगता है कि क्या ये कोरोना वायरस है क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कोई दवाई लेनी चाहिए? अलग अलग तरह के भय आ जाते हैं। So instead of brooding about the coronavirus, let's take our mind away from all those things. तो कोरोना वायरस के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपने दिमाग को इन सारी बातों से दूर ले जाएं। Anytime the news comes, oh, so many people are dead and so many people are the hot spot in Bangalore is just where we were living. बार बार खबर आती है कि इतने सारे लोग कोरोना वायरस से मारे गए हैं और बैंगलोर में जहां पर हम रह रहे थे वहीं पे पास में काफी सारे हॉटस्पॉट हुए हैं। And all those things keep coming up and we keep thinking of the coronavirus. The Lord wants us to take our mind off all that and come to His word. और ये बहुत सारी बातें आती रहती है और हम कोरोना वायरस के बारे में सोचते रहते हैं, बट प्रभु चाहता है कि हम हमारे दिमाग को इन सारी बातों से दूर करें और वो चाहता है कि हम हमारे दिमाग को उसके वचन की तरफ लेकर जाएं। There are few verses which come to my mind at this time. Most of those verses are which we heard in the meetings. कुछ वचन जो मेरे मन में आ रहे थे और ये वचन बहुत सारे हमने पहले भी सभाओं में सुने हैं। I thought of this verse. It comes to my mind. That is Matthew 6, verse 9 about the Lord's Prayer. Jesus taught the disciples to His prayer. He said, जो वचन मेरे मन में आ रहा था वो मत्ती 6:9 का है। ये प्रभु की प्रार्थना के बारे में है जहां प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई। Pray like this, Our Father who is in heaven. And that one sentence, Father, He is our Father. He knows and He cares. इस तरीके से प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये सिर्फ एक शब्द पिता, वो हमारा पिता है, वो सब कुछ जानता है, वो हमारी चिंता करता है। We are His little children. He is able to take care of us. And not only that, He's in heaven. हम उसके वो छोटे बच्चे हैं, वो हमारी देखभाल करने में सक्षम है और इतना ही नहीं बल्कि वो स्वर्ग में विराजमान है। All authority, all power is in His hands. He's sovereign. He can stop the virus in a minute. सारी सामर्थ, सारी सत्ता उसके हाथों में है। वो 1 मिनट में इस वायरस को रोक सकता है। A breath from Him, He can stop and purify the whole earth. He made the whole earth. उसकी एक सांस से वो इस पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर सकता है, वो इस वायरस को रोक सकता है। उसने इस पूरे संसार को, इस पूरी पृथ्वी को बनाया। He controlled the waves and the wind and everything. All the storms ceased when Jesus was on earth. वो सारी लहरों को और हवाओं को नियंत्रित करता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर था तो सारे तूफान रुक गए थे। How much more our Father can do a little thing like this? Out of nowhere the virus came. He can just take it away. और उससे कहीं अधिक वो हमारा पिता इस छोटी सी बात को, इस वायरस को रोक सकता है। कहीं से ये अचानक से ये वायरस आ गया। Even the locusts in the time of the children of Israel came and they were driven away by the Lord. इजराइलियों के समय में उन टिड्डियों को भी वो आई टिड्डियां और परमेश्वर के द्वारा वो दूर कर दी गई। And says where the dwelling place of there was darkness everywhere, but where the children of Israel lived in the land of Goshen, there was light. There was no darkness there. He can do such mighty things for us. ऐसा लिखा हुआ है कि हर जगह अंधकार था पर इजराइली गोशन भूमि में जहाँ रहते थे वहाँ अंधकार नहीं प्रकाश था। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसी सामर्थी बातों को कर सकता है। Why should we worry? And we don't have to panic. Our Father in heaven is in control. हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमें किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो सारी बातों पर नियंत्रण रखता है। And we can tell our children,
We have a Father, a Heavenly Father. Don't have to worry and don't have to panic about anything. और हम अपने बच्चों से कह सकते हैं कि हमारा एक पिता है, वो स्वर्गीय पिता है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। Then the other verse that comes to my mind is 1 Corinthians 10 verse 13. और एक और वचन जो मेरे मन में आया वो है पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 13 वचन। That says, let me read that verse. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Now this temptation which we are facing, this sickness is all over the world. Not just Christians, everybody is facing that. So we can say, yeah, it's common to everyone. और ये परीक्षा जिसका हम सामना कर रहे हैं, ये बीमारी जो हर जगह है, ना केवल मसीह लोग बल्कि हर व्यक्ति संसार में इसका सामना कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सभी व्यक्तियों के लिए आम है। But for us, we know that God, He is faithful. He will. It's common to man, but He is faithful. He will not allow us to be tested or tempted beyond what we are able. पर हमारे लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये सब लोगों के लिए आम है, पर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारी परीक्षा से बाहर वो हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। He knows my child over there in California or in Loveland or wherever you are, she won't be able to bear more than this. वो जानता है कि हमारा बच्चा जो कैलिफोर्निया में है या जो लवलैंड में है, वो जहाँ कहीं भी है, वो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में उन्हें नहीं डालेगा। And he'll say, thus far I no more. This is the limit. And if it does happen, he'll provide a way for us to escape, so we can endure it. और वो जानता है उस सीमा को, और अगर ऐसा होता भी है तो वह उसके लिए निकास भी करेगा ताकि हम उसे सह सके। What a wonderful promise. We can hold on to that and cling on to that and say, Lord, you have a way for me to escape. ये कितना ही अद्भुत वायदा है। हम इन वचनों को थामे रहें और इस पर पूरी तरीके से निर्भर रहें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आपने वो निकास के लिए रास्ता बनाया है। Be it shortage of food or whatever it is. हो सकता है खाने की कमी हो या जो कुछ भी कमी हो। Maybe, in people in India, some of them, they don't have jobs. They live from day to day. They don't have money and they don't have credit cards or anything. All the money they have is in their home or in their wallet. भारत देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास शायद अब नौकरियां नहीं हैं। वो रोज बरोज कमाकर अपना खाना या प्रतिदिन जीते हैं। वो उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। जो कुछ है थोड़ा सा पैसा उनके घर में है या उनके बटुए में है। And they have to live from day to day and they have to feed their families. And nobody can take money to them because the roads are all closed. Think of their situation. But even for them, we tell them. उन्हें दिन प्रतिदिन इस प्रकार से जीना पड़ता है और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। कोई भी उन्हें वो पैसा लाकर नहीं दे सकता क्योंकि सड़कें भी बंद हैं। और मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ, पर उनके लिए भी मैं कहती हूँ। And they don't have Zoom or Skype or anything. We pray that this verse will become true to them. और उनके पास जूम या स्काइप भी नहीं है, पर हम प्रार्थना करते कि ये वचन उनके जीवन में सत्य हो जाए। God will provide a way for them to escape. Somehow money will reach or food will reach them. That's our confidence as God's children. कि प्रभु उनके लिए निकास के लिए एक मार्ग बनाए कि किसी तरीके से पैसा या भोजन उन तक पहुंच पाए। प्रभु के बच्चे होने के रूप में ये हमारा एक विश्वास है। So when we are tempted to think, oh, we don't have this, we don't have that, our children are lacking in this, or they can't go out and play. इसलिए जब हमारे मन में ये परीक्षा आती है कि अरे हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, या बच्चों को ये कमी हो रही है या वो बाहर नहीं जा सकते हैं, we can say, Lord, thank you for the sunshine you've given us some days. Thank you that we have given a home
where we can stay inside and play. Thank you that we have health. या बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, पर प्रभु, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने हमें ये धूप दिखाई, ये दिन दिखाया है, आपने हमें ये घर दिया है कि हम इस घर के अंदर रह सकते हैं, कि हम घर के अंदर खेल भी सकते हैं, आपने हमें अच्छी हेल्थ भी दी है। Thank you that we have some indoor games, something to occupy our children, and we can comfort them with this. कि कुछ इंडोर गेम है ताकि हम अपने बच्चों को हम लोग बिजी रख सकें। And the third verse I was thinking of is in Romans 8. We all know that verse and we've memorized that also. Romans 8:28. और जो तीसरा वचन है जिसके बारे में मैं सोच रही थी, वो रोमियो 8 में से है। हम सभी को ये वचन हमने याद किया है, रोमियो 8:28। It says, we know that God causes. It's not that, I used to think all things work together. Somehow they'll all work together. और इसमें लिखा हुआ है कि सारी बातें मिलकर, मैं सोचती थी कि नहीं, शायद सब बातें। But this is so wonderful that God causes all things to work together. It's God who will do that. He'll cause everything to work together for good. पर इसमें लिखा है कि परमेश्वर बनाता है ऐसा कि सारी बातें मिलकर, ये परमेश्वर है जो इन बातों को करता है, कि वो सारी बातों के द्वारा मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। For whom? To those who love God, to those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. किनके लिए? उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए भी गए हैं, जिन्हें वो पहले से जानता था और उन्हें उसने पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। So God's plan is that we'll become like Jesus. और परमेश्वर की ये योजना है कि हम यीशु के समान बने। And He causes everything. This sickness here, this poverty here, this lack here, whatever it is. और वो इन सारी बातों को इस तरीके से बनाता है, इस बीमारी को, इस गरीबी को, इस कमी को, या जो कुछ भी यहाँ पर है, He causes it so that one day we'll become like Jesus. इस तरीके से बनाता है कि हम एक दिन प्रभु यीशु के समान हो जाएं। Little bit more and more we'll be transformed into His image, and so when we get up to heaven and we see Him, we'll say, थोड़ा थोड़ा करके प्रभु यीशु के समान, प्रभु यीशु के समान, ताकि हम उसकी समानता में बदलते चले जाएं, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं और इनको जब वो हमें देखें, yeah, these people are all seem to be related to each other. They seem to be they look like Jesus, the Savior. They look like Jesus, the firstborn among the brothers. ताकि सब एक दूसरे को एक समान लगे और वो यीशु मसीह के समान जैसे लगेंगे और वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समान लगेंगे। What a wonderful thing. Wherever we are from, we'll be like our Lord Jesus Christ. ये कितनी ही अद्भुत बात है, हम जहाँ कहीं से भी हैं, हम सभी यीशु मसीह के समान होंगे। And then I want to share this verse 31. If God is for us, who is against us? और फिर मैं ये वचन बांटना चाहती हूँ, 31 वचन, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? No virus can be against us. कोई भी वायरस हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। He who did not spare his son, but delivered him over for us all, will he not also with him freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? Then verse 37. In all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Not just somehow conquer, but we'll be overwhelmingly conquering. वचन 37 में लिखा है, वचन 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें जीवन से भी बढ़कर बनाया है। And then the verse 38, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nothing or anything created will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Even a little virus can't separate us from the love of God.
big things or small things, whatever it is, nothing can separate us from God's love. यहाँ तक कि ये छोटा सा वायरस भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। छोटी चीजें, बड़ी चीजें, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। And God has poured that love in our hearts, and that love is for us, and we can give that love for each other. और परमेश्वर ने ये प्रेम हमारे हृदयों में डाला है, और यह प्रेम हमारे लिए है, और ये प्रेम हम दूसरों को भी दे सकते हैं। Praise God for these wonderful promises He's giving us these days. We can hold on to these promises and say, Lord, प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए जो वो इन दिनों में हमें दे रहा है। हम इन वचनों को थाम सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु, that day in 2020, you gave me that promise. I want to hold on to that. प्रभु 2020 में आपने ये अद्भुत वचन मुझे दी और मैं इन वचनों को थामे रहना चाहती हूँ। So, I want to share these few verses we can hold on to when we are tempted. और मैं उन वचनों को बांटना चाहती हूँ जिन वचनों को हम थामे रह सकते हैं। And you know, another thing we can learn is like Noah's wife. Until the flood came, she was independent. She could do what she wanted. और एक और चीज जो हम सीख सकते हैं नोहा की पत्नी की तरह, जब तक बाढ़ नहीं आई थी तब तक वो स्वतंत्र थी, वो जो चाहती थी वो कर सकती थी। She could go where she wanted, and she knew that her husband and children are out at work. वो जानती थी कि उसका पति और उसके बच्चे काम के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो जो चाहती वो कर सकती थी। And she had, like, if she felt like making a cup of coffee, I mean, whatever drink she felt like, she could make that, sit down and relax. अगर उसका मन कॉफी पीने का मन करता था, मेरा मतलब कि उस समय पर जो भी उस समय पीने का उसका मन करता होगा वो बना सकती थी और आराम कर सकती थी, बैठ सकती थी। There was nobody to watch what she is doing. She felt like taking a snack. She could eat a little bit, or she could lie down and sleep, take a short nap if she wanted to. वहाँ पर कोई नहीं था ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। अगर उसका मन कुछ खाने का करता था तो वो थोड़ा सा लेकर उसको खा सकती थी, और अगर उसका मन करता था तो वो लेट जाती थी और थोड़ी देर सो भी सकती थी। But then after the flood, after everybody came into the ark, must have been a different situation for Noah's wife. पर बाढ़ आने के बाद जब सब लोग उस जहाज के अंदर आ गए थे, फिर वो परिस्थितियां नोहा की पत्नी के लिए बहुत ही अलग होंगी। There her husband was at home, children are at home. She had to keep them occupied. She had to make fresh food, wholesome food, tasty food. उसके बच्चे घर पर थे, उसका पति घर पर था, उन्हें उन सब को बिजी रखना था। उसको बहुत ही ताज़ा और बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक खाना सबके लिए बनाना था। She couldn't just like pack something in a lunchbox and say, okay, while you're building the ark, you can take the snack, and if it's you can drink this water or drink this coffee. वो कुछ भी बनाकर लंच बॉक्स में नहीं रख सकती थी। अच्छा, जब आप जहाज बना रहे हैं तो आप ये स्नैक्स ले सकते हैं, तो आप ये पानी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। Here they were day in and day out. Every meal had to be fresh, had to be wholesome. पर अब वो दिन रात उसी जहाज के अंदर थे, इसलिए खाने को जो था वो बहुत ही ताज़ा और बहुत ही स्वादिष्ट होना था। And oh, yesterday I gave this, but today how can I give the same thing? And there's no fridge. I have to make fresh all 3 meals. मैंने कल ये खाना बनाया था, पर आज मैं वही खाना उनको कैसे दे सकती हूँ? वहाँ पर कोई फ्रिज नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही ताज़ा खाना बनाना है और तीनों समय मुझे वो खाना बनाना है। Maybe God would have wonderfully given them a smaller appetite, that they didn't feel like eating too much. परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें शायद कम भूख लगे ऐसा किया होगा, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा खाना खाने का मन न करे। But whatever it is, God must have done some miracles there also. But whatever, it was a different life for her, for Noah's wife. जो कुछ भी रहा हो, मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ भी प्रभु ने कुछ अद्भुत कार्य चमत्कार किया होगा। जो कुछ भी रहा हो, पर उस नूह की पत्नी के लिए चीजें बहुत ही अलग थी वहाँ पर। I was thinking, as women, now with this, we have with this situation which is happening in our homes, our husbands are at home all the time. We have no privacy like to do what we want. मैं सोच रही थी कि एक महिला होने के नाते अब हमारे लिए इस परिस्थिति में कैसा है। हमारे पति इस वक्त घर में है और हमारे लिए कोई भी अकेला समय अब हमें नहीं मिलता है। To text some friend or call home or talk, because
Everybody is there. There's no space where we can go. अब हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, या घर पे जब चाहे बात करना हो उस तरीके से अब हम नहीं कर सकते हैं. हर कोई हमारे आसपास है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम अकेले जा सकें. The only place may be the bathroom, and there's only one bathroom maybe for the whole family. शायद वो सिर्फ एक जगह है और वो बाथरूम है, पर पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है. And the limitations of space and time and everything. It's like that for us now. We have to take that challenge and deal with it. और समय की और जगह की हर एक चीज की सीमाएं हैं यहाँ पर, और हम सब के लिए इस तरीके से है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है और इसका सामना करना है. We can't say, we don't know how long this is going to last. हम नहीं जानते कि ये कितना और अधिक और कब तक चलने वाला है. But there are some things which we can do. There are some things which we should not. I mean, we need to remove from our lives. लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से दूर करना है. I'll explain what I mean. If you look up this verse in Jeremiah 15, verse 19, that's a good verse to remember for us to keep in mind. अगर आप 15 के यिर्मयाह 15:19 में आप देखेंगे, यिर्मयाह 50:19 में लिखा है. Jeremiah 15 verse 19 says, Thus says the Lord, if you return, then I will restore you. Before me you will stand. If you extract the precious from the worthless, you will be my spokesman. यिर्मयाह 15:19, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा. यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा. I just want to read just that part. If you extract the precious from the worthless. मैं इस भाग को पढ़ना चाहूंगी कि यदि तू अनमोल को हाँ कहे और निकम्मे को ना. That's something we have to do now. और ये कुछ ऐसा है जो हमें अभी करना है. You know, in India we have these sieves that are flat. We call it moram. Those who know Indian languages will know. आप सब जानते हैं कि भारत में हम सूप का इस्तेमाल करते हैं. जो भारतीय भाषा को जानते हैं वो ये उसे समझते हैं कि ये सूप है जिससे हम लोग अनाज साफ करते हैं. And then we put the grain in that, maybe 2-3 cups of grain in that, and then these women who are experts, they keep tossing that grain up and down, up and down, up and down. इसमें 1 और 2 या 3 ऐसा हम अनाज रखते हैं किलो, और उससे उस अनाज को साफ करते हैं, और वो अनाज जो है उसको ऊपर नीचे इस तरीके से साफ करते हैं. And they have a way of tossing it and turning it. It's an art. But all the dusty parts will fly off. And then the stones will come to one part. और इसे साफ करने का एक तरीका होता है, इसको ऊपर नीचे इस तरीके से घुमाना, उछालना. ये एक कला होती है ताकि जो धूल है उसमें से निकल जाए और जो कंकड़ पत्थर है वो एक तरफ बाहर निकल जाए. And then the broken wheat or broken rice will come to another part. And then you toss that so that you can use the broken rice. And you toss the other thing away which has the stones. और जो टूटे हुए गेहूं है या चावल है वो दूसरी तरफ आ जाएं, और फिर आप उसे उछालते हैं ताकि उन टूटे हुए चावलों को आप इस्तेमाल कर सकें, और जो दूसरी चीज जिसमें पत्थर होते हैं वो उसे फेंक देते हैं. And people and that the women who do that, they keep on doing it till it's so much separated, so clearly separated that you may not, if they are good at it, you may not find a single stone after it's sifted. और जो ये स्त्रियां ऐसा करती हैं वो इसे ऐसा करती रहती ताकि वो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाएं, ये कंकड़ और वो जो गेहूं या चावल है. अगर वो इसे साफ करने में बहुत माहिर है तो आप पाएंगे कि उसमें एक भी पत्थर नहीं रहता है. Or a single bit of chaff after it's sifted. And that's what, and when I read that verse, that's what I'm reminded of. उसे साफ करने के बाद उसमें थोड़ा सा भी भूसा नहीं रह जाता. इस वचन को जब मैंने पढ़ा तब मुझे ये बात याद आई. The Lord is separating the chaff from the worthless from our lives. परमेश्वर उस भूसे को, उस व्यर्थ बातों को हमारी जिंदगी से अलग कर रहा है. You know, before there were a lot of worthless things we were doing. Chit-chatting, shopping for unnecessary things, throwing away food which we could have saved. इससे पहले शायद हम बहुत सारी
व्यर्थ बातों को हम लोग कर रहे थे, चिट चैट करना या अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी करना, खाने को फेंक देना जिसे शायद हम बचा कर रख सकते थे, or eating unhealthy food. So many things we were doing, worthless things. And the Lord gives us time now. Sit down and think. These things are worthless in your life. और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ऐसा भोजन शायद हम खा रहे होंगे, बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, बहुत सारी बेकार की बातें हम कर रहे थे, और प्रभु हमें समय दे रहा है कि अब हम सोचें उस बारे में, ये कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में बेकार हैं या व्यर्थ हैं. These things which you are doing, you need to throw away. Too much of occupying with your appearance maybe, or your dress, or your whatever. You put that in. God will show us. ऐसी कौन सी बातें जिन्हें आपको फेंकने की ज़रूरत है. हो सकता है कि आप कैसे दिखते हैं, अपनी पोशाक, इन सारी बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे. ये कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपको वो दिखाएगा. When we sit down to reflect and meditate, God will show us, yeah, these things were worthless. जब हम बैठेंगे और इन बातों के बारे में सोचेंगे तो प्रभु हमें दिखाएगा कि हाँ, ये बातें बेकार हैं, ये व्यर्थ बातें हैं. I used to think like in the past, in our home in Bangalore, I used to love to go spend time in the little garden patch that I had. I like to see a little plant newly growing, a new shoot coming up, especially things which I liked. मैं सोचती हूँ कि जब हम बैंगलोर में थे हमारे घर में, और मुझे मेरे छोटे से गार्डन में समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था. उन छोटे छोटे पौधों को बढ़ते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था. ये सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी और इसमें आनंद आता था. And then enjoy that time when I was there in the garden. That was good, relaxing for me. But after I came here and I realized how much of my time I wasted. और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उस बगीचे में होती थी और इससे मुझे बहुत आराम भी मिलता था. पर जब मैं यहाँ पर आई तब मैंने महसूस किया कि मैंने कितना अधिक समय यूं ही बर्बाद कर दिया. Maybe it was not, maybe I could have done something else. But now there's no garden, nothing. More, I can find and do things which are more worthwhile. That's what I mean. शायद मैं इससे बेहतर कुछ और अच्छा कर सकती थी. अब यहाँ पर कोई भी बगीचा कुछ भी नहीं है. अब मैं वो बातें कर सकती हूँ जो ज़्यादा अधिक ज़रूरी और उपयोगी है, और यही मेरे कहने का मतलब है. For gardening is good. But suppose the Lord is showing you, you're spending too much time in doing this and that. बगीचे का ध्यान रखना, ये सारी बातें अच्छी हैं, अगर मान लीजिए पर प्रभु आपको दिखाए कि आप इन सारी बातों में बहुत अधिक समय व्यर्थ कर रहे हैं. Too much time with your, maybe with your hair or with your whatever. I'm not judging anyone, but whatever you're occupied with, and God will show, yeah, that was you were spending too much time with that. शायद आपके बालों के साथ बहुत समय बिता रहे हैं, या कोई भी चीज हो सकती है. मैं किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है. कोई भी ऐसी बातें जिसमें आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और प्रभु आपको दिखाएगा वो बातें जिनमें आप बहुत अधिक समय बिता रहे हैं. Just like he told Martha, Jesus told Martha, Martha, you're worried about too many things. You're cumbered. You're taken up with too many things. Only one thing is needful. जैसे So the प्रभु ने Lord मार्था brings से us कहा back कि to तुम that बहुत one सारी thing. बातों की चिंता करती हो, तुम बहुत सारी बातों से बहुत चिंतित हो, और केवल एक ही चीज जरूरी है, और प्रभु हमें उस चीज के पास वापस लेकर आता है. This is what is needful in my child. This is what you need to do. और यही चीज जरूरी है, इस चीज को करने की तुम्हें आज जरूरत है मेरी बेटी. So it's a good time that we have. We can make use of this time to reflect and throw off the worthless things that like the chaff and the stones are removed. और ये एक अच्छा समय है जब हम मनन कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं. और ऐसी कौन सी व्यर्थ बातें हैं उस भूसे की तरह या उस पत्थर की तरह मेरे जीवन में. Now, some of the things which I talked about things which we throw off, but I want to talk more about the things which we can do, the things which are worthwhile, which we can do. कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में मैंने बात की जिन्हें हमें फेंकना है, मैं उन चीजों के बारे में अब अधिक बात करना चाहती हूँ जिन्हें हम अब कर सकते हैं. ऐसी बातें जो योग्य हैं, जो हमें करनी है. I know all of us will agree with one thing, that is to read God's word and study God's word and meditate on God's word.
that has come powerfully to many of us. सभी लोग एक बात पर सहमत होंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना ये बहुत ही सामर्थी रूप में हम सबके पास आया है। परमेश्वर के वचन पर मनन करना, Especially now we have time to sit and listen to messages and we think, Lord, I want to make use of this time. खास करके जब हमारे पास इतना अधिक समय है वचन को सुनने का, और मैं सोचती हूँ कि प्रभु मैं इस समय का सही उपयोग करना चाहती हूँ। It's just like, you have an extended study holiday. I mean, before your exam comes, you have 10 more days to study for this exam. And you think, yeah, I have 10 more days to study. I'm going to study this and this. Oh, this one I haven't done before. I want to do this properly. ये इस तरीके से है जैसे आपकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि आपकी परीक्षाएं आ रही हैं और आपको 10 दिनों की और अधिक छुट्टी दे दी गई है और आप सोचते कि हाँ अब मेरे पास 10 दिन और अधिक है पढ़ाई करने के लिए। ओह हाँ, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा है अभी तक और मैं परीक्षा से पहले इसको अच्छे से करना चाहती हूँ। ये इसी तरीके से है। It's like that. God has given us 1 month, maybe 2 months. ये इसी तरीके से है जैसे परमेश्वर ने हमें 1 महीना 2 महीना दिया है। Maybe, I'm sure after a few weeks or something, all this will go and we are free to go out and do more. We have more freedom. But this time we won't get again. मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ समय बाद हम सभी लोग आजाद होंगे बाहर जाने के लिए, हम सबके पास वो स्वतंत्रता होगी बाहर जाने की, पर ये समय फिर हमें वापस नहीं मिलेगा। To study God's word. So that's what I'm doing now. We are by ourselves and this is my bedroom I'm sitting in. शायद परमेश्वर के वचन को पढ़ने का ये समय हमें नहीं मिलेगा और यही मैं कर रही हूँ। हम सब अभी अकेले हैं और मैं अभी इस वक्त मेरे बेडरूम में हूँ। I keep my Bible open and whenever I get the time I read this passage, that passage. Oh, where is this verse? Where is that verse? Whichever comes. और मैं अपनी बाइबल को खुला रखती हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसमें से पढ़ती हूँ और इस वचन को और उस वचन को, और जो वचन मेरे मन में आता है अच्छा वो वचन बाइबल में कहाँ पर है। And I keep a little notebook where I can jot down, keep a piece of paper or something in your Bible where whatever verse comes to you, you jot it down. और मैं एक छोटी सी नोटबुक रखती हूँ जिसमें मैं लिख सकूं और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा या कुछ भी अपनी बाइबल के पास रखती हूँ और जो कुछ भी वचन आपके मन में है आप उसको उस डायरी में उस कागज पर लिख लीजिए। Or some thought, maybe a line of some hymn comes to you. Many hymns come to me at this time and I keep humming that song and it refreshes me, uplifts me. कोई भी विचार हो सकता है या किसी भी गीत का कुछ भजन की कुछ लाइनें हो सकती हैं। बहुत सारे भजन मेरे इन दिनों में मेरे मन में आते हैं और मैं उनको गुनगुनाती रहती हूँ और वो मुझे बिल्कुल तरोताजा कर देते हैं और वो मेरी आत्मा को सच में उठाते हैं। Like recently I was thinking of take time to be holy, speak oft to thy Lord. I don't know, it's an old hymn if you know that song. And songs like that tell me the story of Jesus. Right on my heart every word. So many songs which we used to teach our children, we used to sing as children. और मैं एक पुराने भजन के बारे में सोच रही थी कि प्रभु तू मुझे पवित्र बना, परमेश्वर तेरे समान बना। शायद आप में से कुछ लोग इस भजन को जानते होंगे। और कुछ और गीत की मुझे प्रभु यीशु की कहानी बताओ और उसके वचनों को मेरे हृदय में लिख दो, और ऐसे बहुत सारे गीत जो हम अपने बच्चों को सिखाते थे और अपने बच्चों के साथ गाते थे। Those come to my mind and I said I have all the time in the world to sing or hum and read God's word, jot down what God is speaking. और ये गीत मेरे मन में आते हैं और मैं कहती हूँ कि मेरे पास अभी समय है इन गीतों को गाने का, इन गीतों को गाने का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का और उन्हें लिखने का। Then prayer, that's something God is giving us time to do. We may not have time to kneel down and pray. और प्रार्थना ये है जो प्रभु ये समय हमें दे रहा है प्रार्थना करने का। शायद आपके पास समय नहीं हो कि आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें। But as soon as we wake up, oh Lord, thank you that you give me health, thank you that you give me life, thank you that my children are safe. जैसे ही आप उठें प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आपने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। Thank you that so many thanks for food, thank you that I can chew my food, thank you that I can get up and do my work. I'm not paralyzed. धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए, धन्यवाद कि मैं अपने भोजन को चबा भी सकती हूँ। प्रभु धन्यवाद कि मैं उठ सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, धन्यवाद कि मैं लकवाग्रस्त नहीं हूँ। Thank you for so many things.
we can't enumerate. Think of the number of things we have to thank God for. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हम इन बातों की गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी अनगिनत बातें प्रभु हमारे लिए करता है। Then throughout the day while we are doing our work, instead of thinking, oh, how many people are there dying of this or that, think of God. Lord, speak to me. This time is so short. Your coming is so near. पूरा दिन जब हम काम कर रहे हैं तब हम ये ना सोचें कि कितने लोग मर गए हैं, पर सोचें कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, समय बहुत कम है और आपका आना बहुत निकट है। Is this a picture of what's going to happen in the coming days of tribulation? Suddenly, tribulation will come like birth pangs for a woman. Suddenly it will come. You didn't know when it. ये इस तरीके से है कि आने वाले समय की परीक्षा की एक ये घड़ी है। वो महाकलेश जो है वो उस तरीके से होगा जैसे गर्भवती स्त्री को पीड़ा होती है अचानक से। We didn't know 2 months back this would happen. We thought, okay, it's happening in one corner of China. We didn't realize it's gone to every part of the world. 2 महीने पहले हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से होगा। हमने सोचा कि ये तो दुनिया के कोने में चीन के एक कोने में हो रहा है। तब ये महसूस नहीं किया था कि ये दुनिया के हर एक हिस्से में फैल जाएगा। It's almost like the whole earth and held in God's hand, and it just spread all over the earth, and we don't know, Lord, what's coming in the coming days. इस तरीके से है कि पृथ्वी जो है परमेश्वर के उन हाथों में आ गई है और हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। Give me strength so that I can stand in those days when greater trials come. Let me not fail. You hold me. प्रभु मुझे सामर्थ दे ताकि मैं इन दिनों में खड़े रह पाऊं और अधिक जब परीक्षाएं आती हैं तो हम लोग फेल ना हो। You are my Father. You are Almighty. You are the King of the universe. You have all power. You're in charge of the whole universe. Help me to stand so that I won't fall in the coming days. आप मेरे पिता हैं, आप सामर्थी हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड की सामर्थ रखते हैं, आप राजा हैं। आप मेरी सहायता करें ताकि मैं खड़ी हो सकूं और मैं ना गिरूं। Then we can pray, Lord, my children, are they ready? My grandchildren, are they ready? Are they so far away from you? Still there is hope. हम प्रार्थना करें कि क्या मेरे बच्चे तैयार हैं, क्या मेरे पोते पोतियां तैयार हैं। वो शायद आपसे बहुत दूर है, फिर भी उनके लिए आशा है। My brothers and my sisters, my siblings, my others whom I knew, whom I came across, and I don't know where they are spiritually. Will they stand in the time of testing? Lord, and then we can pray for them. Say, Lord, have mercy on them. Give them a chance to repent. मेरे भाई बहन और मेरे रिश्तेदार जिन्हें मैं जानती हूँ या ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिली हूँ, मैं नहीं जानती उनकी आत्मिक अवस्था कहाँ है, कैसी है और वो उस परीक्षा के समय में कहाँ खड़े होंगे, और फिर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते कि प्रभु उन पर दया करें। Help me to do my part. Maybe I can take my mobile phone and send a text message. Hey, listen to this message. God has spoken to me. I want to share this with you. So many things we can do. आप उन्हें मौका दे कि वो पश्चाताप कर सके, और हो सकता है कि मैं अपना मोबाइल लूं और उनको एक संदेश भेजूं कि आप इस संदेश को सुने, प्रभु ने मुझसे इस संदेश के द्वारा बात की है और मैं इस संदेश को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। Prayer is not like 3 times a day or 7 times a day. You know, in Bangalore, I was just before we left, it was so hectic. I had such a lot of work to do, and I thought, will I ever finish it? प्रार्थना इस तरीके से नहीं है कि 3 बार करनी है या दिन में 7 बार करनी है, इस तरीके से नहीं है। बैंगलोर में जब हम वहां से निकल रहे थे उससे कुछ समय पहले ही मुझे इतना अधिक काम था, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इसको कभी खत्म भी कर पाऊंगी। I was almost in tears thinking I'll never finish. And now I have all the time and say, Lord, thank you. It's such a change for me. I can pray. और मैं सच में बिल्कुल आंसुओं में थी और मुझे लग रहा था कि मैं कभी इसे खत्म ही नहीं कर पाऊंगी, और अब मेरे पास इतना सारा समय और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मेरे लिए ये बदलाव आया कि अब मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। And even during those times when I didn't have time to pray, I used to hear the bell ringing in the Catholic Church. You know, our home was very close to the Catholic Church. और उस समय भी जब मेरे पास समय नहीं था कि मैं प्रार्थना कर सकूं, और तब मैं उस घंटी को सुनती थी जो उस कैथलिक चर्च में बजती थी, और हमारा घर जो उस कैथलिक चर्च के बहुत पास था। So every morning 5:30 at noon,
And in the evening, the church bell would ring. And I said, okay, that's a reminder for me to pray. Lord, I thank you that you are near me and I can speak to you. Just a short prayer. और जो चर्च की बेल है वो सुबह 5:30 और दोपहर और शाम को बजती थी और तब मैं कहती थी कि हाँ, ये मेरे लिए एक याद दिलाने वाला है कि मुझे प्रार्थना करना है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे पास हैं और मैं आपसे बात कर सकती हूँ। एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना। Then after that there'd be a Muslim, the mosque, they would call out from the mosque to pray and say, okay, they are calling to their false god, but I can call on the true God at this time. और फिर एक मस्जिद में से आवाज आती थी और वो मस्जिद से पुकार होती थी और फिर मैं कहती थी कि वो अपने झूठे परमेश्वर को बुला रहे हैं, पर मैं अपने सच्चे परमेश्वर को बुला सकती हूँ। And say, Lord, I want to turn to you. When this country will turn from heathen religion and turn to you, open their hearts so at least they can think of you, true God. और मैं कहती थी कि प्रभु, मैं आपकी ओर देखती हूँ, प्रभु कब ये लोग आपकी ओर मुड़ेंगे और कब ये अपने धर्म से दौड़कर आपकी ओर मुड़ेंगे। परमेश्वर, आप इनके मन को बदले ताकि वो आपके बारे में सोच सकें। So anytime and all the time, God will send a reminder to pray. Spend that time, few minutes, few sentences of prayer. We can make use of that opportunity to pray. और ये सारे वो याद दिलाने वाले हैं कि हमें अब प्रार्थना करनी है। थोड़े से शब्द, थोड़े से वो शब्द और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। I also said about keeping a journal. Just write, jot down, even if it's in the night. Sometimes I wake up in the night and then I don't want to switch on the light. But in the dim light, I have a paper and pencil and I just scribble. और एक छोटी सी नोटबुक को रखें ताकि रात को भी अगर हम जगते हैं और जब मैं लाइट को ऑन नहीं करना चाहती हूँ और डिम लाइट है और मैं एक कागज और पेंसिल साथ में रखती थी और मैं उसमें कुछ लिखती थी। I don't see what I scribbled, but in the morning I say, yeah, I must write this down because this is a thought which came to me. So at my bedside, I keep a paper and a pencil and I scribble something and then I write it down. मैं उस वक्त नहीं देख पाती थी कि मैंने क्या लिखा, पर मैं सुबह देखती थी कि हाँ, मैंने क्या लिखा है। अच्छा, मेरे मन में ये रात को विचार आया था और मैंने ये लिखा था, तो मैं अपने बेड के साइड में एक कागज और एक पेंसिल इस तरीके से रखती हूँ ताकि मैं उसमें कुछ लिख सकूं जो मेरे मन में रात को विचार आया। Because who knows, that might be valuable to somebody. It might be definitely valuable to me sometime in my life. So those are the things which we can do. कौन जानता है कि वो किसी के लिए मूल्यवान हो, वो निश्चित रूप से आपके लिए मूल्यवान है और ये वो चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। Bible study, prayer. Then we can have the habit of rejoicing in the Lord all the time. Around us people are grumbling and complaining. बाइबल का अध्ययन करना और प्रार्थना करना और साथ में हर समय आनंदित रहने की वो आदत होना। हमारे आसपास सब लोग बहुत ही कुड़कुड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। Oh, this thing, we can't get this. The shortage of eggs. The Easter and people have bought up all the eggs. And the shortage of milk, the shortage of this vitamin, the shortage of hand sanitizer, toilet paper, the shortage. यहाँ पर ये कमी है, वो कमी, हमें ये नहीं मिल रहा है और इस तरह पे सब लोगों ने सारे अंडों को खरीद लिया है और दूध की कमी है, इस विटामिन्स की कमी है, हैंड सैनिटाइजर की कमी है, टॉयलेट पेपर की कमी है और हर जगह कमी और कमी है। I say, Lord, I don't want to be taken up with all that. I want to rejoice. I want to spend my time rejoicing in you and praising you, singing your praises. Have a cheerful attitude. और प्रभु से कहें कि हम इन सारी बातों से विचलित नहीं होना चाहते और प्रभु, मैं आप में आनंदित होना चाहती हूँ और मैं अपने समय को आप में आपके आनंद में गुजारना चाहती हूँ और आपकी आराधना और प्रशंसा करते हुए, और मैं एक आनंदित हृदय चाहती हूँ। So that when I meet my husband and my children and all those who are near me, they see a cheerful disposition. They see happiness radiating from me. They see the joy of the Lord coming out of my life. ताकि जब मेरे बच्चे और मेरे पति जब वो मेरे सब निकट हैं, ताकि वो एक आनंदित हृदय देख सके, खुशी देख सके मेरे अंदर, ताकि वो प्रभु का आनंद मेरे जीवन से आता हुआ देख सके। Maybe in this time, that's what God is trying to teach us. Practice that happiness. Practice being happy and cheerful and encouraging. और ये वो समय जब प्रभु हमें सिखा रहा है कि आनंदित होने का क्या क्या अर्थ है। Encouraging each other personally by phone, a WhatsApp message,
or anything, any way God has given us. और एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करना, फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर, किसी भी तरीके से, जो भी तरीका प्रभु ने हमें दिया है. And we see the needs of others. You say, okay, so and so doesn't have this. Somehow, can I send this material to her? और हम दूसरों की जरूरत को देखें. अच्छा, उस व्यक्ति के पास ये नहीं है, क्या मैं उसे ये भेज सकती हूँ? Okay, if you don't have eggs, I have extra eggs. Or I have an extra gallon of milk. Maybe when you get some, you can return it. Or you can keep it. Or I have masks. अच्छा, आपके पास अंडे नहीं है, मेरे पास अतिरिक्त अंडे हैं, मेरे पास अधिक दूध है, मैं आपको दे सकती हूँ और आपके पास जब हो तब आप उसे वापस लौटा सकते हैं और आप यह से रख सकते हैं. और मेरे पास अतिरिक्त मास्क है. Extra masks. I have extra gloves. You can have a few. You know, God will open our heart to the need of others. मेरे पास अतिरिक्त मास्क है, मेरे पास अतिरिक्त दस्ताने हैं, आप कुछ रख सकते हैं और परमेश्वर हमारे हृदय को खोलेगा दूसरों की जरूरतों के लिए. And especially I want to talk to girls who are single. You know, till now I was talking indirectly about married people. Those who are single and by themselves. और मैं विशेष रीति से उन लड़कियों से बात करना चाहती हूँ जो अविवाहित हैं. अभी तक मैं शादीशुदा महिलाओं से बहनों से बात कर रही थी और जो लड़कियां अकेली हैं. Especially I know in India there are so many girls, even if they are staying with their families, they are the only Christians in their home. Maybe their family is all Hindu or unconverted people. विशेष रूप से भारत में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेली रह रही हैं और वो अपने परिवार में अकेली विश्वासी हैं और हो सकता है उनके परिवार के बाकी सभी लोग हिंदू हों और प्रभु पर विश्वास नहीं करते हों. And now they are at home. There's no church for them to go to. Before that, they could go for the church meetings and be encouraged by seeing each other. उनके लिए अब कोई चर्च नहीं है. पहले वो चर्च की सभाओं में जा सकती थी, मीटिंग अटेंड कर सकती थी और एक दूसरे को देखकर प्रोत्साहित हुआ करते थे. Maybe there are limitations. Maybe there's only one phone or there are other financial constraints and you can't get out of your home. Maybe you don't have a job and there's financial restriction. हो सकता है और भी सीमाएं हो, शायद केवल एक ही फोन हो और भी आर्थिक समस्याएं हो सकती है, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते और हो सकता है कि नौकरी नहीं है और आर्थिक समस्याएं हैं. I want to encourage such girls. If you're staying alone, all that I said above till now, find your joy in the Lord. Say, Lord, I don't have the joy which I should have. मैं ऐसी बेटियों को, लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ. अब तक जो मैंने कहा कि प्रभु में अपने आनंद को पाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पास वो आनंद नहीं है जो मेरे अंदर होना चाहिए. You know, that is what prayer is. Lord, I don't have this which I need, this bread. I come to you, feed me, give me the joy in my heart, give me your presence with me. यही प्रार्थना है. प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरे पास नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है. प्रभु ये रोटी मुझे दीजिए, प्रभु ये आनंद आप मुझे दीजिए, प्रभु आपकी उपस्थिति आप मुझे दीजिए. Give me the realization that you are with me. Give me the assurance. I don't have church brothers and sisters to encourage me, but you are there. मुझे ये एहसास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं. प्रभु मुझे ये विश्वास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं. चर्च के भाई बहन नहीं हैं, पर आप यहाँ पर हैं. We can ask the Lord, Lord, you give me, and do you think He will not? He says, if you evil parents, I mean good parents, but in evil in God's compared to God. आप प्रभु से पूछ सकते हैं, आप प्रभु से मांगे. क्या आप नहीं सोचते हैं कि प्रभु जरूर देगा? अगर आप बुरे होकर आप अच्छे हो सकते हैं, बट प्रभु की नजरों में फिर भी वो बुरे होकर भी. When your child asks you for egg, you won't give a scorpion. When he asks you for bread, you won't give here, eat the stone. You don't do that. How much more God will give us? अगर आपका बच्चा अंडा मांगे तो आप उसको सांप नहीं देंगे. अगर वो आपसे रोटी मांगे तो आप उसे जरूर देंगे. तो परमेश्वर उससे कितना अधिक आपको वो देगा. So, dear single sisters who are alone at home, you don't have husbands or parents or anybody to comfort you, take comfort. The Lord is near you. मेरी प्यारी बहनों, जो आप अकेली हैं अपने घर में, आपके माता पिता या पति या कोई ऐसा नहीं है जो आपको वो कंफर्ट दे सके, प्रोत्साहन दे सके. इस बात में प्रोत्साहन लेके प्रभु आपके साथ है. He'll give you extra grace. He said that temptation which you're facing,
I'll give you extra gas to others don't have it, but I'll make my presence more real to you. वो आपको अतिरिक्त अनुग्रह देगा। ये जो परीक्षा आप जो सामना कर रहे हैं, प्रभु आपको अतिरिक्त अनुग्रह देगा। प्रभु कहता है कि मैं अपनी उपस्थिति को तुम्हारे लिए और अधिक वास्तविक बनाऊंगा। And there are some maybe who are students maybe. In India, this is the examination time. And lot of children, I mean, they have to study for the exam and then the exam is postponed. और कुछ ऐसे हैं जो शायद छात्र हैं, ये स्टूडेंट हैं, और भारत देश में ये परीक्षाओं का समय है। बहुत सारे बच्चों को उनकी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना था और अब उनकी परीक्षाओं का समय आगे बढ़ा दिया गया है। So what will they do? They can't keep on studying and there's no other outlet for them. अब वो क्या कर सकते हैं? वो पढ़ाई करते ऐसा नहीं कर रह सकते हर समय, और उनके लिए और कोई दूसरा काम नहीं है। And maybe some girls may be facing a time when you should have done an exam and passed and you could have got your job then. और कुछ बेटियां ऐसी होंगी जिनको शायद अपनी परीक्षाएं पास कर शायद अभी नौकरी मिल जानी चाहिए थी। Or maybe it's your college admission is pending, is all held back because you couldn't do your exam. Maybe you could have had a good chance to get into a good professional college. या हो सकता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन शायद अभी बाकी हो, पर अब वो नहीं हो सका क्योंकि आपकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। या हो सकता था कि एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने का एक अच्छा मौका था, but you couldn't get in because this whole thing has happened and you don't know when the exam will be, whether you'll get a chance to get admitted into a professional college, whether your whole career, all that uncertainty young people face in India. पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी बातें अब जो दुनिया में हो रही हैं, परीक्षाएं कब होंगी और कब आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, अब आपके करियर का क्या होगा, इतनी सारी अनिश्चितताओं का आप सामना कर रहे होंगे। And you can take courage. God is in control. He has a way out of this situation. And he'll give me even if there's one seat and I am eligible, God will keep that seat for me in that college. प्रभु में प्रोत्साहित होकर प्रभु बातों पर नियंत्रण रखता है और वो रास्ता निकालेगा। और अगर केवल एक ही सीट है, परमेश्वर मुझे उसके योग्य बनाएगा। And another thing which we can do is single girls, married or students or whoever, take this opportunity to do things which you couldn't do before. और एक और चीज जो हम सब कर सकते हैं, जो सिंगल बहनें हैं या जो मैरिड हैं, इस समय का उपयोग करें उन बातों को करने के लिए जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। Like if you are a single girl and you have an opportunity to do an online course, take that chance and do it so that you will be qualified to do some exam. You can get that will help you to get a job. जैसे कि आप सिंगल लड़की हैं तो आपके पास मौका है ऑनलाइन कोर्स करने का। इस समय का उपयोग करें ताकि आप योग्य हो सके, जो आपकी मदद करेगा एक अच्छी नौकरी पाने में। Maybe you get a chance to do something further in your field. और आपको ये मौका मिल सकता है कि आपके क्षेत्र में कुछ और अधिक आगे आप कुछ और कर सकते हैं। Learn a new course. नए कोर्स को सीखें। Maybe if you have an ability to play some musical instrument, keep practicing the piano or guitar or whatever you have, so that you learn that musical instrument and can be a blessing to others. अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की अगर आप में योग्यता है, पियानो, गिटार या जो कुछ भी आपके पास है, तो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना आप सीखें और यह दूसरों के लिए भी आशीष हो सकती है। And girls who are at home, take the time, maybe things which you couldn't do before. I used to wait for opportunity to organize my kitchen. और जो लड़कियां घर पर हैं, उन चीज़ों को करने का समय निकालें जिन्हें शायद आप पहले नहीं कर पा रही थी। मैं इंतज़ार किया करती थी उस समय का जब मैं अपनी रसोई को ठीक से व्यवस्थित कर सकूं। To do the cupboards, throw off things which are old, which need to be thrown off. And I'm a big collector of unwanted things. So this is the time we can take to organize our kitchens, our cupboards. मैं मेरे अलमारी को संवारने का या उन चीज़ों को फेंकने का जिनकी ज़रूरत मुझे नहीं, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों का संग्रह करने वाली मैं हूँ। और ये समय है कि हम हमारे जो रसोई है उसको व्यवस्थित कर सकें
और हमारी अलमारी को हम अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। Maybe you find things which you need repair, like a lot of our clothes maybe need to be tightened or loosened, some hooks, some buttons, our clothes or our children's clothes, our husband's clothes. This is the time when we can catch up on all that. और ऐसी चीज़ों को हम ढूंढ सकते हैं जिनकी मरम्मत करने की शायद हमें ज़रूरत है। हमारे बहुत से कपड़े शायद जिन्हें या ढीला या टाइट करने की ज़रूरत होगी, कुछ हुक या बटन या हमारे या बच्चों के कपड़े, हमारे पति के कपड़े। ये समय है जब हम ये सारे काम कर सकते And हैं। another thing we can do is watch good programs. I forgot to tell you in the things which we need to cut off. और ये समय है कि हम कुछ अच्छे प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें काटने की या दूर करने की ज़रूरत है। Things we did, some people have become addicted to chit-chatting with friends, movies, too much time with the TV, anything that the Lord doesn't like. जैसे कुछ लोगों को दोस्तों से बात करने की बहुत अधिक लत सी लग जाती है, मूवीज देखना या बहुत अधिक समय टीवी को देखने में बिताना। Some young girls may have had a liking for some guy and you're dreaming about that guy or wanting to text that person. That's very common. युवा लड़कियों को हो सकता है कि किसी युवा लड़के के लिए वो पसंद करती हो उनको, और आप उस व्यक्ति के बारे में सपने देख रहे हो और आप उस व्यक्ति को वो मैसेज भेजना चाहते हो। ये बहुत ही सामान्य है। And now is the time to say, Lord, you're trying to speak something to me. I need to cut off that friendship. I don't need to text that person anymore. और ये समय है कि आप प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मेरी मदद करें इस फ्रेंडशिप को दूर करने के लिए। अब उस व्यक्ति को वो मैसेज भेजने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। Maybe this is not your will. Are you trying to show me that this is not your will for me? This friendship is not the right friendship for me. Are you trying to speak that? शायद ये आपकी इच्छा नहीं है और आप ये दिखा रहे हैं कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये मित्रता मेरे लिए सही मित्रता नहीं है। If we don't listen to the Lord when He tells us these things which we need to cut off, you know, He might drastically cut it off in a way which will be painful for us. अगर हम प्रभु को नहीं सुनते हैं जब प्रभु हमसे ये बात करना चाहता है, तब हो सकता है कि प्रभु बहुत ही आक्रुता से उन चीजों को दूर कर दे जो शायद हमारे लिए बहुत दर्दनाक भी हो सकती हैं। So use the time if the Lord is speaking to you about some friendship which you need to cut off. Say, Lord, done. I'm done with this. I'm not going to have this. I'm not going to text this person anymore. Even if that comes up, I'm going to just not respond. इस समय का उपयोग करें जब प्रभु कुछ मित्रता के बारे में शायद आपसे बात कर रहा है, तो आप उन मित्रताओं को दूर कर दें और कहें कि हाँ प्रभु, अब मैं इन मित्रताओं को दूर करती हूँ। अब मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करूंगी, और अगर आता भी है सामने से मैसेज तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। So there are so many things. Maybe God is trying to show something about our marriage plans. Maybe somebody was planning to get married and then the Lord says, pray about it. और ऐसी बहुत सारी बातें, और हो सकता है परमेश्वर हमारी शादी की योजना के विषय में शायद हमें कुछ दिखा रहा हो सकता है कि कोई शादी करने की योजना बना रहा हो और प्रभु कह रहा हो कि आप इसके बारे में अभी प्रार्थना करें। Maybe this is not the time. Maybe you have to postpone your wedding. Or maybe, who knows, put yourself in that and ask the Lord, Lord, what are you trying to speak to me? I want to obey. ये अभी समय नहीं है कि आप शादी करें, आपको अभी शादी को स्थगित करना होगा और अपने आप को उस परिस्थिति में डालें और प्रभु से बोलें कि प्रभु आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं और मैं आपकी आज्ञा को मानना चाहती हूँ। There was one verse which came to me when I was a student and I used to lay hold of, and which now comes to my mind. That is in Psalm 46. If you open your Bible to, and when you get time, read that Psalm. एक वचन है जो मेरे पास आया जब मैं एक स्टूडेंट थी और जिसको मैंने थामे रहा, और ये वचन अब मेरे मन में आ रहा है। भजन संहिता 46। आप अपनी बाइबल में खोलें और जब भी आपको समय मिले आप इस भजन पर मनन करें। Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. You know all that. Even therefore we will not fear, though the earth should change, though the mountains slip into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains quake at its swelling.
all that. But there's one verse which I want to share, and that is परमेश्वर हमारा क्षणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक वर्ड है आगे जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी और अधिक। verse 5. God is in the midst of her, she will not be moved. God will help her when morning dawns. Put your name there. God is in the mid. God is in the midst of you, Annie, or whatever. Put your name there. God is in your midst. God is with you. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी नहीं टलने का। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। अपने नाम को वहां पर रखें। परमेश्वर एनी के बीच में है, वहां पर है एनी के साथ। अपने नाम को वहां रखें। परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। You will not be moved. That means you won't be shaken. This thing which is happening, and a lot of people are afraid, wondering whether this is happening, this is going to happen, what's the next virus going to be like. Nothing will shake us. और तुम हिलाए नहीं जाओगे, टलोगे नहीं। और ये सारी जो बातें हो रही हैं उससे तुम हिलाए नहीं जाओगे। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और शायद अगला वायरस आने वाला है, पर कोई भी चीज हमें हिलाने नहीं पाएगी। Nothing will offend us because God is with us. We will not be shaken. And so nice, it's so wonderful that he puts that pronoun her. God is in the midst of her. If the Lord is with us, sisters, dear sisters, he's in our midst. He will help when the morning dawns. और कोई भी चीज हमें ठोकर नहीं खिला सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये कितना ही अद्भुत है जो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसके बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो पौ फटते ही परमेश्वर। For me, the morning is when this night is over, when this crushing and the difficulties, testing, the virus, oh, knows what will happen next. पौ फटते ही मतलब जब वो अंधेरा दूर हो गया है, रात चली गई है, ये परीक्षाएं, ये वायरस, ये परीक्षण सारा। Some people say there'll be another surge of virus because people will start going out and then expose themselves. Whatever happens, I'm not going to be afraid because God is with me. I will not be shaken. कुछ लोग कहते हैं कि एक और वायरस होगा, क्योंकि जब लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम डरने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हम हिलाए नहीं जाएंगे। And if we are not shaken, our whole family will be strong. Our husbands won't be shaken. If our husbands see us getting worried and upset and becoming like a neurotics, oh, my wife, she can't handle this. How will I help her? और जब हम नहीं हिलाए जाते तो हमारा परिवार भी हिलाया नहीं जाएगा। हमारे जो पति है वो भी हिलाए नहीं जाएंगे। जब हमारे पति देखते हैं, जब वो देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा निराश है या बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाती है, वो सोचेंगे कि ओह, मेरी पत्नी ये सारी चीजों का सामना नहीं कर पाती है, वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। But if he sees a wife who's so strong, she's not going to be shaken by this. That'll give strength to him. That'll be like marrow in his bones, it says. Godly wife will be like that. Be strength to him and to our children. लेकिन वो देखेंगे कि उनकी पत्नी कितनी मजबूत है और वो इन सारी बातों से हिलाई नहीं जाएगी, और हम पत्नियां उनके लिए एक ताकत हो जाएंगी, और हम उसके लिए उनके लिए एक तीर हो जाएंगे। And give us strength and be a strength, and we will not be shaken. Let more trials come. Okay, we pass through the time of this virus. Maybe another virus may come, or some other sickness may come, but the last time God took us through, and He will take us through. और हम अपने पति के लिए, बच्चों के लिए वो ताकत बन जाएंगे और हम हिलाए नहीं जाएंगे। और हाँ, हम इस वायरस के समय से भी गुजर जाएंगे। हो सकता है कोई एक और वायरस आए या कुछ और बीमारी भी आए। पिछली बार परमेश्वर हमें वहां से लेकर आया और इस बार भी प्रभु हमें लेकर जाएगा। Let it be whatever happens, financial troubles from parents, trouble from sickness. चाहे कुछ भी हो, चाहे आर्थिक परेशानियां हो, चाहे बीमारियां हो, whatever happens, we will not be shaken, because it's not that we will not be shaken. God won't allow us to be shaken because He is with us. That's the comfort we have, and that's the boldness we have.
as His children. चाहे कुछ भी हो जाए, हम टलेंगे नहीं, हम हिलाए नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं कि हम नहीं हिलेंगे, पर इसलिए कि परमेश्वर हमें टलने और हिलने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। और ये बहुत ही प्रोत्साहन और आराम देने वाले बात है। और प्रभु के बच्चे होने के नाते ये हियाव हमारे साथ है। God won't let us be tempted more than what we can bear. He won't. He'll know when to stop. So these are the verses. Let me repeat the verses which I had written down. और परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालेगा, और वो जानता है कि इन सारी बातों को कब रोकना है। और आइए मैं उन वचनों को दोबारा से दोहराना चाहती हूँ जिन्हें मैंने लिखा है। Matthew 6, that's the Lord's Prayer. 1 Corinthians 10:13, that He will not allow us to be tempted more than what we can bear. Romans 8, God causes everything to work for our good. मत्ती 6, प्रभु की प्रार्थना। 1 कुरिन्थियों 10:13, वह हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। रोमियो 8, परमेश्वर सारी बातों के द्वारा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। And that nothing can separate us from the love of God. And Jeremiah 15, we have to separate the precious from the worthless. And this last verse, Psalm 46 verse 5, God is in our midst. He will not allow us to be shaken. और कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। और यिर्मयाह 15, जिसमें हमें बहुमूल्य बातों को निकम्मी बातों में से अलग करना है। और भजन संहिता 46 का 5, परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो हमें टलने नहीं देगा। So God bless you, dear sisters. I'm so happy to see all of you and so encouraged that we are in similar situation, each one in our own home, but God is with us and He's encouraging us and He will help us to be more than conquerors, more than conquerors. Praise the Lord. और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हूँ कि हम सब लोग एक ही परिस्थिति में हैं हमारे घरों में, और प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमें प्रोत्साहित कर रहा है। प्रभु हमारी मदद करेगा कि हमें जैवन से भी बढ़कर बनाए। प्रभु की स्तुति हो। Shall we just say a word of prayer before I go? क्या हम अभी प्रार्थना करेंगे? Our Heavenly Father, we thank you for this precious time you've given us these days when you are speaking to us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। आपने हमें ये समय दिया जब आप हम सबसे बात कर रहे हैं। And we know that you want to speak many more things, wonderful things to us. You want to whisper things in our ear, very special and loving things. Help us, Lord. Open our ears to hear those things. हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आप उन बातों को हमारे कानों में बोलना चाहते हैं। बहुत सारी अद्भुत और बहुत ही प्यारी बातें। हमारी मदद करें, हमारे कानों को खोले उन बातों को सुनने के लिए। And help us to keep those things in our heart so that it will be a blessing not only to us but to our children and to all those who come across our path. और मदद करें उन बातों को हमारे हृदय में रखने के लिए, और ताकि वो बातें ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी आशीष बने, और जो भी हमें मिले उन सब के लिए आशीष बन जाए। Bless my dear sisters over here in Loveland, in California, in India, Bangalore, everywhere, Lord. We pray that you'll speak to each one. मेरी सारी प्यारी बहनों को जो यहाँ पर हैं या लवलैंड में हैं, कैलिफोर्निया में या इंडिया में, जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनसे बात करें। And meet our need and comfort us, encourage us, so they'll be strong, so that we will be strong and we will not be shaken with whatever trials come across our path. हमारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, हमें प्रोत्साहित करें और हमें दृढ़ करें ताकि हम मजबूत बने प्रभु, और हम हिलाए ना जाएं चाहे कोई भी परीक्षाएं हमारे रास्तों में क्यों ना आए। Help us to count it all joy that we can look back on these days as days of triumph. Thank you again, Lord Jesus. We ask these things in Jesus' precious name. Amen. हम सारी बातों को आनंद की तरह गिनना चाहते हैं ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें, ताकि इन्हें जीवंत बनने वाले दिन हम देख सकें। इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।